Hello viewers, today on Arunachal Mirror I have with me film director Mr. Avinash Dhyani from Uttarakhand, who has directed a film on Mahavir Chakra Awadi martyr Jaswant Singh Rawat in 2019, and the name of the film was 72 Hours, Martyr Who Never Died. So he is with us today to discuss on the scope of filmmaking in Arunachal Pradesh and also on his upcoming films that is based on Arunachal. Yes. So sir, before I begin my questions, I would like to welcome you to Arunachal Mirror, and thank you so much for giving us this time. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. It's very overwhelming for me because Arunachal. I always, I always say to my people in Uttarakhand, Arunachal Pradesh is a second state of mine, very second home for mine, because when I was started this film 72 Hours, then. I visited Arunachal Pradesh, and the kind of response I have received from Arunachal's people, I mean, that was tremendous, and I really miss all of them who were the part of this journey. Arunachal के जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, 72 Hours जिस तरह से उन्होंने देखी, उसे अप्रिशिएट किया, it's very heart touching for me, and I'm very emotional towards the people from Arunachal Pradesh, and thank you so much. Thank you all. Okay. So, sir, before I ask some questions on filmmaking, as you are in Uttarakhand right now, so how is the COVID-19 situation out there? Just, I'm curious to know. In our state, it's under control right now. Government has taken such good initiative, and the situation is under control now, and अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा problems नहीं है. कुछ cases तो बढ़ रहे हैं, but now still we are safe hands because our CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वो बहुत अच्छा initiative ले रहे हैं, और we are in good hands actually, I would say. So, sir, my question today is, what inspired you to make film on martyr Jaswant Singh Rawat? My father, he was in army. He was a blackhead commander. He was in, and he used to story of Jaswant Singh Rawat because at some point of his life he visited Arunachal. He posted over there, and he used to narrate me the story of Jaswant Singh Rawat, and I was very inspired कि यार हमारा ही देश था, ऐसा था जिन्होंने इतनी ब्रेवरी के साथ वॉर लड़ी, और हमें कहीं ना कहीं से तो I have a dream to when I'll become a actor and a director, I'll definitely make a film on this subject. And finally, when I step inside in this industry, then this is the very greatest opportunity for me as a maker, because it's a very beautiful, very emotional, very heroism story. तो ये फिल्म मुझे बनाने का मौका मिला, और इसके जो इंस्पिरेशन थे वो मेरे डैडी थे, because मैं उनको बचपन से देखता आया था एज अ सोल्जर. तो कहीं ना कहीं वो जो जिस था एक सोल्जर का, वो मेरे अंदर भी था, बजाय मैं, क्योंकि मैं फिल्म मेकर बना, मगर ऑल दो वो जो सोल्जर ब्लड है दैट्स विद इन मी, वो मेरे अंदर था. तो आई गेस माय फादर इज द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन फॉर दिस फिल्म. तो सर, ये मूवी बनाने में कितना समय लगा आपको? सर 72 Hours जो फिल्म थी, क्योंकि काफी रिसर्च इन्वॉल्व था. जसवंत सिंह ने ऐसा कहते थे कि जसवंत सिंह जो थे, उन्होंने 3 दिन 72 Hours तक, उन्होंने, जो मेरी फिल्म का टाइटल भी है, उन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी. तो ये रिसर्च का काम था, इसमें काफी सारा रिसर्च मुझे करना पड़ा. तो it has taken a lot of time. I guess 3 years research. Then so many times I visited Arunachal Pradesh. I met local Monpa people over there. They supported me. There was a guy, Tenzing उनका नाम था, वो रेडियो में थे. He supported me a lot. उन्होंने बहुत सारा रिसर्च वर्क मुझे दिया. And क्योंकि एक मार्टिर की जो कहानी थी, उस ब्रेव सोल्जर की, फिर साथ में वहाँ के जो लोकलाइट्स लोग थे, उन्होंने किस तरीके से जसवंत सिंह को सपोर्ट किया था उस वॉर में,
उसका उसका रिप्रेजेंटेटिव मैंने अरुणाचल का रिप्रेजेंटेटिव मैंने उस फिल्म में नूरा को रखा। वो एक कैरेक्टर, क्योंकि मैं पूरे लोगों को नहीं दिखा सकता था, तो मैंने अरुणाचल के लोगों का रिप्रेजेंट कर रही थी। तो सर मैं आपसे ये एक चीज जानना था कि जब ये फिल्म बनाते वक्त आपको कुछ दिक्कत से गुजरना पड़ा क्या? मतलब व्हाट वर द हर्डल्स दैट यू फेस व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म इन अरुणाचल? Actually, it was not an easy subject to make, because I was making a war film, and war film में एक अलग तरह का struggle होता है। लगभग 6 month की ट्रेनिंग सारे एक्टर को देनी पड़ी, इवन मुझे खुद ट्रेन होना पड़ा, बिकॉज आपको MMG चलानी थी, LMG चलानी थी, और जिन सर्कमस्टांसेस में जसवंत सिंह ने वॉर लड़ी थी, कहीं ना कहीं वो एज एन एक्टर, बिकॉज आई वाज पोर्ट्रेइंग द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म, तो कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन भी मुझे करनी थी। तो डिफिकल्ट था एज एन एक्टर, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, बिकॉज हमने फिल्म को उत्तराखंड में ही शूट किया, और जो चाइनीज आर्मी, जो एक्टर मेरे चाइनीज आर्मी के जो लोग बने थे, वो सब तवांग से आए थे, सारे के सारे एक्टर्स, बहुत अच्छे एक्टर्स थे सारे के सारे। वहाँ पे दौरजी, when I visited Arunachal Pradesh for my research, I met a guy, Dorji. Dorji, he's a local filmmaker over there, and he supported me a lot. तो दौरजी सारे एक्टर्स को लेके आए थे, वो सब लोग तवांग से उत्तराखंड आए सारे के सारे, and it was a very long journey for them. बट फॉर्चुनेटली वो यहाँ पहुंचे। फिर उसके बाद क्योंकि ब्लास्ट फिल्म में था, ब्लास्ट, गोला बारूद, एक्शन में कई बार लोगों को चोटें भी लगी, किसी के गन लग गई नोज पे, तो इस तरह के बहुत सारे हर्डल्स आते रहे। फिर उत्तराखंड भी, क्योंकि इट्स अ वेरी सिमिलर टू अरुणाचल प्रदेश, पूरा माउंटेन है चारों तरफ, और जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे वो लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पे हम लोग शूट कर रहे थे फिल्म को, एंड वहाँ पे स्नोफॉल हो जाता था, बहुत तेज विंड ब्लो होती थी, तो लाइट्स को हमें होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता था, कैमरा शेक करता था, एक्टर लोग शेक करते थे। फिर जो रनाउंड इंडियन सिनेमा के जो रनाउंड एक्टर थे, मुकेश तिवारी जी एंड शिशिर शर्मा जी, जो बहुत सीनियर एक्टर हैं, उन सबको भी बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी, बिकॉज फिल्म का बैकग्राउंड ऐसा था कि वो माउंटेन पे ही शूट हो सकती थी फिल्म। तो ऐसा कोई ऐसा कोई सीन्स था जो अरुणाचल में भी शूट करना था, ऐसा कुछ? या सर, मैं पूरी फिल्म पहले अरुणाचल में ही मैं शूट करना चाहता था, बिकॉज मुझे अरुणाचल की जो टोपोग्राफी थी वो बहुत सिमिलर थी, क्योंकि जसवंतगढ़ मैं देख चुका था, कुछ वैसा ही मुझे चाहिए था। अरुणाचल बहुत सूटेबल प्लेस था, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग, क्योंकि बरसात के समय मैंने फिल्म शुरू की, तो अरुणाचल तवांग पहुंचना इतने सारे क्रू को लेके, लाइट्स को लेके, इक्विपमेंट्स को लेके, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था मेरे लिए, तो उस वजह से मैं वहां शूट नहीं कर पाया। बट मैंने अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे एक्टर्स थे, जिन्होंने चाइनीज आर्मी का पार्ट निभाया, दौरजी और उनकी पूरी टीम, तो वो मैंने वहीं से उनको बुलाया, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं कहीं ना कहीं समहाउ अरुणाचल को किसी न किसी वे में मैं ऐड ऑन कर सकूं अपनी फिल्म में। और जो मेरी फिल्म की जो एक्ट्रेस थी, जिन्होंने नूरा का कैरेक्टर प्ले किया, येशी डेमा, शी इज आल्सो अ मोनपा गर्ल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, and we casted her from there only, from Arunachal Pradesh, and the kind of a performance she has delivered, that is incredible. I mean, वो जो performance नूरा के रूप में येशी ने दिया है, एंड उससे पहले येशी ने कभी कुछ किया नहीं था एज एन एक्टर, बहुत छोटे मोटे कुछ एल्बम किए थे अरुणाचल प्रदेश के। आई वॉज वेरी स्केर्ड कि वो नई लड़की है, कैसे परफॉर्म करेगी, बट हम पहाड़ी लोगों के अंदर आर्ट तो कहीं ना कहीं होती ही है। तो जो मैं उसको बताता गया एज अ डायरेक्टर, वो उसको ग्रैब करती रही, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था येशी का। एंड अगर आपने फिल्म देखी होगी तो उसने बहुत ब्यूटीफुली उस कैरेक्टर को उसने पोर्ट्रे किया है। सो आई रियली थैंकफुल दैट गर्ल कि उसने, और वो गन शॉट करना, वो फायरिंग वो एलिमेंट, तो उनके रूप में कहीं ना कहीं मेरे एक्टर के रूप में अरुणाचल प्रदेश मेरे साथ था।
So, sir, you have interacted with some of local artists from our state. So, what do you think? How is the scope of films in Arunachal Pradesh? Filmmaking in Arunachal. Sir, in filmmaking in Arunachal Pradesh, there are a lot of scopes in Arunachal because, see, Arunachal Pradesh जो है वो वहाँ पे falls हैं, beautiful mountains हैं, एक अलग तरह की virgin locations हैं, और एज अ फिल्म मेकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो अरुणाचल प्रदेश में हैं। मेरी एक मित्र हैं, फ्रेंड हैं, तानिया, वो अरुणाचल प्रदेश में है। वो अभी जल्दी मेरी एक नेक्स्ट फिल्म में भी वो एक बहुत अच्छा गाना गाएंगी। प्लेबैक सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी नेक्स्ट फिल्म है लाइफलाइन, सो आई एम प्लानिंग लाइफलाइन टू शूट ओवर देयर अरुणाचल प्रदेश में पूरी फिल्म, क्योंकि वो फिल्म ट्रैवलिंग के ऊपर है, माउंटेन्स के ऊपर, माउंटेन्स के बारे में है। तो वो जो फिल्म है लाइफलाइन, वो मैं अरुणाचल प्रदेश में फॉर श्योर बहुत जल्दी में शूट करने वाला हूँ। इस बार मैं मौका नहीं गवाऊंगा। ओके, गुड। सो वैसे आप आते जाते रहे अरुणाचल में, आपको क्या लगता है, इज देयर समथिंग दैट अरुणाचल नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड इन द फील्ड ऑफ आई मस्ट से रोड और एनीथिंग? यस जरूर आपको because sir, when I was planning to shoot my film in Arunachal Pradesh, the same film 72 hours, so the road is very very bad conditions, and मुझे ऐसा लगा कि वो जो रोड जो हमारी है अरुणाचल प्रदेश की, सड़कों में सुधार की जरूरत है। क्योंकि अगर तवांग, क्योंकि बहुत मशक्कत से आप तवांग पहुंचते हो, बहुत डिफिकल्ट, बहुत ट्रिकी रास्ता है, और अगर वो सड़कें बहुत अच्छी हो जाएं तो मुझे से लगता है कि मैं तो हर फिल्म के शूट के लिए मैं अरुणाचल आना चाहूंगा, मैं किसी न किसी गाने के शूट के लिए अरुणाचल आना चाहूंगा। तो सर आपके आने वाले फिल्म्स के बारे में कुछ बताएं। जी सर, मेरी जो अपकमिंग फिल्म्स हैं, वन इज अमंगल बेसिकली इट्स अ हॉरर वेंचर। ये एक हॉरर फिल्म है, और लॉकडाउन के टाइम पे क्योंकि कुछ करने को था नहीं, इससे पहले मेरी एक फिल्म बन के रेडी पड़ी हुई है, सौम्या गणेश एक डायबिटिक सेंट्रिक फिल्म है। तो वो मैं शूट कर चुका था, वो रिलीज पे जाने वाली थी, बट सडनली द लॉकडाउन हैपेंड इन आवर लाइफ, तो वो फिल्म मुझे रुकनी पड़ी। एंड देन आई स्टार्टेड दिस अमंगल, और अमंगल का शूट हो चुका है, लगभग 70% शूट हो चुका है अमंगल का। एंड वो बस मैं उसको जल्दी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम या मैक्स प्लेयर, वहां पे वो फिल्म मैं रिलीज करूंगा। देन उसके बाद एक फिल्म है लाइफलाइन के लिए आई एम प्लानिंग टू शूट दैट फिल्म इन अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, ऊपर माउंटेन्स की तरफ। मैं दोबारा, मेरा बड़ा मन है कि मैं तवांग की तरफ जाऊं। उस वो जो सेला पास है, आई रियली लव सेला पास, वो जो लेक है वहां पे, तो वहां आसपास में कहीं उस फिल्म पे शूट करूं। ओके, तो इस फिल्म में भी कुछ रोल रहेगा हमारे अरुणाचल की तरफ से, यानी प्रोटैगनिस्ट? यस ऑफ कोर्स। अरुणाचल के मैं दौरजी से दोबारा संपर्क करूंगा, बल्कि मैं ईटानगर जब आऊंगा तो वहां पे मैं एक ऑडिशन भी हम रखेंगे। वहां के जो अच्छे पोटेंशियल एक्टर्स हैं, अगर वहां पे जो फोक आर्टिस्ट हैं, क्योंकि मुझे उस फिल्म में वो फोक कल्चर दिखाना है अपने अरुणाचल प्रदेश का, वो क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान का जो फोक है, अलग अलग स्टेट का, वो बहुत ही रिच है हमारा फोक। और अगर आपने अगर फिल्म 72 आवर्स देखी हो, तो मैंने उसमें एक गाना था जो नूरा एक गाना गाती है, गुनगुनाती है, उसमें एक फोक सॉन्ग था, कुछ तो गाना था, मैं भूल गया उसके लिरिक्स। तो फोक मुझे बड़ा पसंद है, उत्तराखंड का फोक बहुत रिच है, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश का फोक बहुत रिच है, तो उसमें फोक की भी बहुत गुंजाइश है उस फिल्म में, लाइफलाइन में। क्योंकि वो फिल्म पहाड़ों की फिल्म है, तो कहीं ना कहीं फोक, वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारी चीजें इन्वॉल्व होना लाजमी हो जाता है। ओके, तो सर अभी जैसे अरुणाचल में देखा जाए तो फिल्म, यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है अभी ग्रो करने शुरू किया है, इट्स इन अ वेरी इन्फेंट स्टेज। तो यहाँ लोकल आर्टिस्ट भी बहुत है, लोकल फिल्म मेकर्स भी बहुत है, बट कहीं ना कहीं हम अरुणाचल के अंदर या कैपिटल के अंदर ही सीमित रह जाते हैं। अगर ये लोग, व्हाट इज द स्कोप, मेरा कहना, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हमारे लोकल आर्टिस्ट कोई हिंदी फिल्म में भाग लेना चाहते हैं, तो ऐसा क्या स्कोप दिखता है आपको?
बिकॉज देयर आर सर्टेन लैंग्वेज बैरियर्स, तो कहीं ना कहीं दिखने में भी थोड़ा वी लुक लाइक मोंगोलॉइड्स ना, तो ये फेस इतना फेमिलियर होगा कि जी नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्या आपका क्या कहना है? नहीं सर, सर मैं आपको बताऊं, जहां तक हमारे फेस की बात है और हमारे कि हम जिस तरह की हमारा एक फेस का एक अलग तरह की बनावट है, हमारे जो इतने बड़े एक्टर हैं, डैनी साहब ने हिंदी सिनेमा में अपना एक स्तंभ साबित किया है और उन्होंने कितने वर्सटाइल कैरेक्टर प्ले किए हैं। उन्होंने कभी भी लैंग्वेज को या फेस को कभी बैरियर नहीं बनने दिया और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो एक बहुत ही स्थापित रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, जिनका जो बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्टों में शुमार होते हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ डैनी साहब का। अभी जैसे मैंने फिल्म में मेरी इस फिल्म में 72 आवर्स में येशी ने काम किया, तो क्योंकि बहुत नीड थी मुझे कि मुझे एक मुनपा एक्ट्रेस ही चाहिए थी, एक लड़की वहाँ की मूल की लड़की चाहिए थी। और अगर आप येशी को देखेंगे तो येशी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं कैसे उसे कास्ट करूं, या क्योंकि मैं तो येशी का आना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि वहां से मुझे एक आर्टिस्ट मिल गया। और आगे भी अगर जो वहाँ के लोकल फिल्म मेकर्स हैं सर, मुझे ऐसा लगता है कि उनको स्टेप इन करना चाहिए बाहर, सीख के अपने वापस, जैसे मैं उत्तराखंड में ही वापस से मैं हिंदी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। उनको भी, मैं पहले बॉम्बे रहा, कई साल में बॉम्बे रहा, वैसे ही उन्हें बॉम्बे थोड़ा सीख के, आजकल इंटरनेट है, गूगल है, आप फिल्म डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग आप इंटरनेट से सीख सकते हैं, अलग अलग फिल्मों पे रिसर्च कर सकते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि छोटे छोटे कैमरे भी 4K रेजोल्यूशन पे आ रहे हैं। तो हमारे जो लोकल फिल्म मेकर्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, मैं उन सभी को ये कहना चाहूंगा कि वो थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा फिल्म मेकिंग को और टेक्निकली पढ़ें। अगर आप कुछ भी टेक्निकल डालोगे गूगल पे या यूट्यूब पे कि यू नो हाउ टू डायरेक्ट अ फिल्म, हाउ मेनी शॉट्स इन द फिल्म, तो इस तरह से कुछ भी अगर वो डालेंगे, दे विल गेट द रिजल्ट्स। और उसे पढ़िए, थोड़ा कुछ लोगों को असिस्ट कीजिए, बॉम्बे जाके कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, और उसके बाद स्टार्ट मेकिंग योर ओन फिल्म्स, ओन कल्चर, जो अपना हमारा इतना रिच कल्चर है, उन पे फिल्में बनाना शुरू कीजिए। और सर, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी, ये कभी भी बैरियर नहीं होता है सिनेमा के अंदर। अगर हम एक रीजनल फिल्म भी बनाना चाहते हैं, लैंग्वेज की फिल्म भी बनाना चाहते हैं, तो जस्ट मेक इट एंड इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, अपनी फिल्म वहां भेजिए। अगर आपकी फिल्म अच्छी है सर, तो लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बनेगा, नेवर एवर। तो हिंदी फिल्म बनानी है, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में बहुत अच्छे से राइज कर रहा है। इफ यू टॉक अबाउट Netflix, Amazon Prime, then this what we can say, Amazon Prime हो गया, उल्लू हो गया, ऐसे बहुत सारे, जियो है, नेट जियो है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप फिल्में अपनी बना के बेच सकते हैं, बशर्ते कि वो फिल्म अच्छी बनी हो, टेक्निकली आप और साउंड हो जाइए, यू कैन इजीली मेक योर ओन फिल्म। तो सर, जब फिल्म मेकिंग की बात आती है, व्हाट इट इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन कि आप अगर अरुणाचल में देखा जाए, अधिकतर लोग बॉलीवुड के बड़े बड़े फैंस हैं, यहाँ पे ज्यादातर लोग हिंदी मूवीज देखते हैं, आई थिंक मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन। और जब फिल्म मेकिंग की बात आती है तो हमने ये देखा है कि आई वांट टू फोकस मोर ऑन रीजनल फिल्म मेकिंग, लाइक हमारा जो असल में जो कल्चर है, तो उसको थोड़ा दर्शाना जरूरी लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो गया कि हम जो अपना ओरिजिनलिटी को थोड़ा भूल जाते हैं। हमारे जो हिंदी सिनेमा के जो फिल्म मेकर्स हैं, वो उस कल्चर को दर्शाएंगे, तो वो जो कल्चर है, वो जो आर्ट फॉर्म है, हमारे जो फोक म्यूजिक हो या हमारा फोक कल्चर हो, वो तभी राइज करेगा जब हमारे फिल्म मेकर्स उस पर ध्यान देंगे। मैं सर आपको बताना चाहूँ, मैं लाइफलाइन में इसीलिए वहां जाके शूट करना चाहता हूँ आके, क्योंकि मैं हिंदी में फिल्म को बना रहा हूँ, लाइफलाइन को। और अगर मैं एक हिंदी फिल्म की रीच ज्यादा बड़ी होती है बनस्पत रीजनल फिल्म के, मैं इसीलिए वो फिल्म वहां आके बनाना चाहता हूँ, जिससे हमारा वो जो कल्चर है, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर मुझे ऐसा लगता है कि ये
it's my moral responsibility to carrying forward my culture, my people, जिससे कि वो उस नेशनल लेवल पे पहुंच सके और लोगों को मालूम चल सके, इंटरनेशनली लोगों को मालूम चल सके कि यस, जो हमारा देश है उसमें कितनी विविधताएं हैं और इतना ब्यूटीफुल अलग अलग तरह का कल्चर हमारे देश में है। तो लाइफलाइन में इसीलिए सर मेरा पर्पस ये है कि मैं उसको वहां शूट करूं। ओके। तो सर अभी बहुत सारे लोग बॉलीवुड की सपने देखते हैं, तो आप और कहीं सारे ऐसे भी यंगस्टर्स जो मिसलीड हो जाते हैं, अपने लाइफ में भटक जाते हैं, जो असल जो एम होता है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे? सर मेरा ऐसा मानना है कि हम जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की जो चमक धमक है उसको कहीं ना कहीं फैंटेसाइज उससे हो जाते हैं, ग्लैमराइज हो जाते हैं कि वही लाइफ है, वो बहुत अच्छी लाइफ है, बिल्कुल बहुत अच्छी लाइफ है। बट हम अपने आसपास के जो रिसोर्सेज हैं उनको नहीं देख पाते, कहीं ना कहीं हमारी नजरें वहां पे नहीं पड़ पाती। मेरा ऐसा कहना है कि जैसे मैं बॉम्बे कई साल में बॉम्बे रहा हूँ और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज एन एक्टर मैंने बॉम्बे में काम किया। बट जब मुझे मेरी हिंदी फिल्म बनानी थी तो उसके लिए मैं उत्तराखंड आया जी। क्योंकि यहाँ पे मेरे अपने लोग थे यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा इवन दो जो हमारा लोकल मीडिया है या जो लोकलाइट्स हैं वो आपको सर मेरा कहना ये है कि देखिए हम आसपास की अपनी जो चीजें हैं ना, हमारे अराउंड जो चीजें होती हैं, हमारा ध्यान कई बार उस पर नहीं जा पाता एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सीखें बाहर काम जाकर। तो मेरा कहना ये है कि हम लोग काम सीखें, मगर अगर जब हम अपनी फिल्म बनानी हो तो हमें अपने प्रदेश की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो लोग हैं, जो लोकल मीडिया है, वो सभी लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमें एक बहुत एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है अपने लोगों के साथ काम करने में, जो कहीं ना कहीं बॉम्बे में हम लैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बॉम्बे में हमें फिल्म नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए बॉम्बे में फिल्म। बट आजकल आप देखिए जितनी भी बड़ी हिंदी फिल्म्स हैं वो सभी आउटडोर शूट हो रही है, या तो वो उत्तराखंड में बहुत शूटिंग्स यहाँ पे चल रही है। जब बाहर के लोग हमारे प्रदेश में आके फिल्म्स बना सकते हैं हिंदी फिल्म्स, तो why we are not, हमें तो पहले बनानी चाहिए जी। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। आई थिंक पीपल विल, आवर गाइज विल गेट एनकरेज फ्रॉम दिस पार्ट। तो सर मैं आपसे और एक चीज जानना चाहता था, आप जब मुंबई में रहे, जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर की रोल कर रहे थे जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे हम लोग सुनते हैं ना कि मुंबई माया नगरी है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा बहुत ही कमाल का पेनफुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये तजुर्बा जो है जब आप लर्निंग करते हैं तो वो पेनफुल होता है, तकलीफों से भरा होता है, हर्डल से भरा होता है। मगर मुझे ऐसा लगता था हमेशा से कि यस, ये क्योंकि मेरा वहां पे कोई गॉडफादर नहीं था, तो ठीक है डिफिकल्टीज तो आएंगी ही। अगर मैं आर्मी में जाता और मैं ऑफिसर बनता, जैसे मेरे डैडी थे आर्मी पर्सन, तो वहां भी बहुत सारी परेशानी मुझे आती। तो हर फील्ड में परेशानियां हैं, बट आप लगातार कॉन्स्टेंटली उस पर लगे रहिए, उसको पकड़ के रखिए, तभी आप काम सीखते हैं। बॉम्बे एक ऐसा शहर है, मेरी कर्म भूमि रहा है बॉम्बे, अभी भी मेरा कर्म भूमि है। बॉम्बे आपको टफ बनाता है, मजबूत बनाता है आपको। बॉम्बे लूजर्स के लिए बॉम्बे नहीं है, वो वहां वही सस्टेन कर सकता है जिसके अंदर दम होगा रुकने का, और बॉम्बे आपको बहुत कुछ देता है। अगर आप बॉम्बे जाएं तो वहां पे, क्योंकि जो बॉम्बे है वो वहां का स्ट्रगल शुरू होता है ट्रेन से उतरते ही। वहां पे खाने का स्ट्रगल है, रहने का स्ट्रगल है, क्योंकि आप अपने घरों से दूर होते हो, अपने माँ बाप से दूर होते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर ज़ील है कुछ बनने की, कुछ करने की, तो आप रहते हो बॉम्बे में। और बॉम्बे क्योंकि पूरी हमारी इंडियन सिनेमा का पूरा हब है बॉम्बे में, तो आप वहां पे जो मैं आज तक सर सीख पाया, जो लर्न कर पाया, ऑल बिकॉज ऑफ बॉम्बे। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था, एज एन एक्टर काम करता था, मैं लाइटमैन काम करता था। मैं कभी भी घर पे नहीं बैठा कि कोई मुझे आएगा बुलाएगा और मुझे काम देगा। मैं लगातार काम करता था, चाहे वो एज ए टेक्निकल पर्सन हो, चाहे वो एज एन एक्टर हो, एज ए मॉडल हो, क्योंकि मुझे हीरो बनना था। और मुझे पता था कि नॉलेज
पावर लेके आएगा और तुम्हें इंडियन सिनेमा का ये जो टेक्निकलिटी है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, कैमरा वर्क है, तुम्हें ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, ये सब कुछ एक्वायर करना पड़ेगा, तभी तुम सस्टेन कर पाओगे। Okay. और उसी का नतीजा है सर कि मैं एक वॉर फिल्म बना पाया इतनी बड़ी। कंग्रेचुलेशन सर। तो सर अंतिम में जाते जाते मैं आपसे एक ऐसा मैसेज लेना चाहूँगा, जो आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे जो हमारे फिल्म मेकर्स को, जो लोकल आर्टिस्ट हैं, वो सपने देखते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ करना है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जो नजदीक, देखिए बॉम्बे दूर है ना, वो बॉम्बे, अगर उनका सपना है कि वो बॉम्बे जाके एक्टर बने, बहुत अच्छी बात है, बट बॉम्बे अभी थोड़ा दूर है। हम ये देखें कि हमारे पास फोन होता है, छोटे कैमरे होते हैं, हम उस कैमरे पे अगर कुछ शूट करें, कुछ एक फिल्म बनाए, छोटी शॉर्ट फिल्म बनाए, यूट्यूब हमारे पास, हमारे मोबाइल पे यूट्यूब है, हमारे सिस्टम पे यूट्यूब है, हम उसमें अपलोड करके अपनी फिल्म को पूरी दुनिया तक दिखा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, पीबीके वाइन्स करके है एक लड़का दिल्ली में, जिसने यूट्यूब से वो सेंसेशनल बन गया इंडिया का। सो यू हैव, जो आपके नजदीक सबसे पहले जो चीज है उसका इस्तेमाल कीजिए आप। आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, वहां से लर्न कीजिए, वहां से नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद अपनी कोई फिल्म शूट कीजिए और उसको यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। और अगर थोड़ा सा बेटर फिल्म बनाएंगे तो उसको आप नेटफ्लिक्स का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कैमरे जो है वो अप्रूव्ड है नेटफ्लिक्स के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको एरिलेक्सा कैमरा चाहिए या रेड ड्रैगन कैमरा चाहिए। आपके पास अगर कैनन का C300 कैमरा रेंज हो रहा है या और भी जो उसमें कैमरे लिखे हुए हैं, अगर आपके पास वो अवेलेबल हो रहा है, थोड़ी सी बेटर फिल्म उस पर बनाइए और आप OTT प्लेटफॉर्म का अप्रोच कीजिए। जो नजदीक है सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए। और दूसरा, कोई ऐसी कहानी लिखिए जो आपके कल्चर से रिलेटेड कहानी हो, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड कहानी हो, क्योंकि अगर आप अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री, उन चीजों को सामने लेके आएंगे तो अगर समहाउ आप टेक्निकली थोड़े वीक भी होंगे मगर लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। जैसे मैंने जसवंत सिंह पे फिल्म बनाई तो वो एक सब्जेक्ट था, वो एक मार्वलस सब्जेक्ट था, एक हमारे मार्टियर का मार्वलस सब्जेक्ट था, तो लोगों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया। अगर मैं कोई चालू कमर्शियल फिल्म बनाता तो शायद वो रिकॉग्निशन, वो प्यार मुझे ना मिलता जो मुझे जसवंत सिंह को बना के मिला। जी, थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अरुणाचल मिरर। अगर अगली बार अगर इंटरनेट सही होता है, वी विल ब्रिंग, आई वाज थिंकिंग टू एक्चुअली रोप इन सम लोकल फिल्म मेकर्स आल्सो so that we can have a small conversation. So next time जरूर, for sure I will plan again for such a meeting in future. So today unfortunately my internet connection is not that good. Okay sir, we will see you again. Yeah, thank you so much dear, thank you so much अरुणाचल टीवी का, मिरर का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। आप लोग बहुत ही, मैं आप लोगों से इमोशनली बॉन्ड हूँ। और फिल्म जसवंत सिंह रावत फिल्म बनाई थी, सो लव यू ऑल। आप सब ख्याल रखिए, कोविड-19 में थोड़ा अवेयर रहिए और उसको फैलने से रोकिए थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।